The last class we have discussed about antibody and antigen presenting cell. Today we will discuss about the classes of antibody or types of antibody. How many types of antibodies are there and mechanism of antibody आज पढ़िबा. Okay, तो start करूची मन देकी सुनो. So classes of antibodies रे पढ़िबा. There are 5 types of immunoglobulins are present. Actually antibody को हमें immunoglobulin भी कहू. मन देकी सुनो समस्ते. Antibody को हमें immunoglobulin कहू. और there are 5 types of immunoglobulins have been reported. Actually हमें immunoglobulin को केमिति represent करू लेखु केमिति. Immunoglobulin को capital I small g. देखो इठी second line रे देखो मार्किंग करूची. IgA IgD लिखा जाइछि ना. तो abbreviation केमिति होबो यार abbreviation Ig for immunoglobulin, A for alpha, Ig for immunoglobulin, D for delta. So likewise, there are 5 numbers of or 5 types of immunoglobulins have been reported in our body. Okay. समस्ते मन देखि सुनो. एंटीबॉडी कौन पढ़िथिला में लास्ट क्लास? What is the antibody? Anyone? केही अच्छा ना पढ़ेला सबो? सर एंटीबॉडी कौन रे? Okay, सुनो. Antibodies are the proteins. Actually, in antibody, 4 numbers of generally, not actually 4 number. 10 number of polypeptide chains are also there. I mean discuss करिबा अबे. But antibody रे कौन थाए किछि polypeptide chain थांती. दुईटी heavy chain थिबो और दुईटी light chain थिबो. Okay, और heavy chain light chain केमिति combine हिथिबे with the help of which bond? Disulfide bond. So दुईटा heavy chain बा polypeptide chain गुडाको गोटिए polypeptide chain सहित आ गोटिए polypeptide chain केमिति attach हेकि रहइबो with the help of disulfide bond. Okay, so antibodies are grouped into 5 classes or there are 5 isotypes of antibodies have been reported. What are that? केमिति तांको डिवाइड कराइछि एमिनो एसिड सीक्वेंस को नेकी. हमें लास्ट क्लास डिस्कस करथिले एंटीबॉडी जतबेले पढिथिले एंटीबॉडी रे दुईटी हेवी चेन थाए और दुईटी लाइट चेन थाए. ता सहित आ कोन डिस्कस करथिले कांस्टेंट रीजन थाए वेरिएबल रीजन थाए. जोटी एंटीजन आसिकी बाइंडिंग हेई थाए बा एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी पार्ट रे वेरिएबल रीजन थाए माने सेमानकर एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज होता है. बॉटम पार्ट रे कांस्टेंट रीजन थाए. सो से कांस्टेंट रीजन कहारो एंटीबॉडी रो हेवी चेन रो कांस्टेंट रीजन रो एमिनो एसिड सीक्वेंस को नै की एंटीबॉडी को 5 टाइप रे डिवाइड करा गला. मन रहला आउथरे कहूची सुनो. एंटीबॉडी रे दुईटी हेवी चेन दुईटी लाइट चेन थाए. हेवी चेन रो अपर पार्ट रे कोन थाए वेरिएबल रीजन थाए और बॉटम पार्ट रे कोन थाए कांस्टेंट रीजन थाए. तो कांस्टेंट रीजन हो कि वेरिएबल रीजन हो सेगुडा काहा को नै की तयारी बहुत गुडा एमिनो एसिड को नै की तयारी. तो कांस्टेंट रीजन रो एमिनो एसिड सीक्वेंस को नै की 5 टाइप रे डिवाइड कर रहा है एंटीबॉडी को. व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ immunoglobulins? IgA, IgD, IgE, IgG and IgM. IG कौन कहली मु एब्रिविएशन कौन IG कोठु आसिला फ्रॉम immunoglobulin. immunoglobulin कौन रे immunoglobulin में गोटे प्रोटीन जे कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करि थाए हम बॉडी को डिफरेंट डिजीज रु रेजिस्ट करि थाए. डिफरेंट डिजीज जेमे हेबो नाही सेति पई डिफेंस मैकेनिज्म रे immunoglobulin थाए. सो immunoglobulin 5 टाइप रो काहा को नै कि 5 भाग रे विभक्त करा गला. The amino acid sequence of the constant region of the heavy chains. Okay, heavy chain रो जो constant region रे amino acid sequence अछि जेहेतु से गोडा 5 टाइप्स रो अलग अलग थाए तने से मानको 5 डिफरेंट नेम दिया. So what are the 5 types? IgA means immunoglobulin alpha, A for alpha, Ig for immunoglobulin. IgD immunoglobulin delta, Ig for immunoglobulin, D for delta. IgE immunoglobulin epsilon, EPLISON. Okay, immunoglobulin epsilon आमे डिस्कस करिबा क्लियर पूरा इलाबोरेटली डिस्कस करिबा आगु को. एमे खाली मन रखो.
IgG immunoglobulin gamma, G for gamma, Ig for immunoglobulin, and IgM means कौन IgM माने कौन रे immunoglobulin mu, mu जानिथिबो तमे refractive index physics रे पढिथिबो mu symbol. Okay, so there are 5 types: alpha, delta, epsilon, gamma, and mu. 5 types of immunoglobulins are present in our body. Out of these 5 types of immunoglobulin, immunoglobulin alpha, okay, immunoglobulin alpha रो जो heavy chain थिबो ताको हम कोन कहबा alpha chain. बुझा पडुची समस्तन को? Yes, हाँ sir. सर फर्स्ट मु कहली एंटीबॉडी को हम पांच भाग रे व्यक्त करा. एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहआ जाए. 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स अछि. आ 5 टाइप केमे डिवाइड करा गला एमिनो एसिड सीक्वेंस हेवी चेन रो जो कांस्टेंट रीजन अछि तार एमिनो एसिड सीक्वेंस को नै कि पांच भाग रे विभक्त कराइछि. ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा रो हेवी चेन को कोन कहबा अल्फा चेन. इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा रो काहे कि रे के गार काहे टाणुचो इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा रो हेवी चेन को हम कोन कहू अल्फा चेन. इम्यूनोग्लोबुलिन डी रो डेल्टा चेन. इम्यूनोग्लोबुलिन ई रो एप्सिलॉन चेन. देखो एप्सिलॉन चेन, गामा चेन एंड म्यू चेन कहा गला. ओके, सो हेवी चेन को एबे कोन कहले हमें इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा रो हेवी चेन को अल्फा चेन, डेल्टा रो डेल्टा चेन, एप्सिलॉन रो एप्सिलॉन चेन, गामा रो गामा चेन एंड म्यू रो म्यू चेन कहा जिवो हेवी चेन. ओके, नेक्स्ट, each class of antibody adheres to and react with the specific antigen for which it is produced. आमे आगरु ही डिस्कस करिचे ए विषय रे स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन को ही कंबाइन करि परिबे. ओके, पार्टिकुलर एंटीबॉडी पार्टिकुलर एंटीजन को ही कंबाइन करि परिबे. यार बहुत गुडा एग्जांपल भी देइथिली. जेमिति कि न्यूमोनिया जदि हिची न्यूमोनिया पय स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए सेही एंटीबॉडी मलेरिया की फाइलेरिया डिजीज को क्योर करि परिबो नाही. So each class of antibody adheres means attach. Okay, adheres माने कौन रे attach हेबा. Adheres to react with the specific antigen for which it is produced. जो डिजीज पई जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हेची से डिजीज रो एंटीजन को ही एंटीबॉडी कंबाइन हेबो. अलगा डिजीज रो एंटीजन को कंबाइन हे परिबो नाही. Because antibody and antigens are specific for each other. Specific antigen को specific antibody ही कंबाइन कर. नेक्स्ट प्रोसीड करिवा. डायग्राम देखि परथुओ पांचटा एंटीबॉडी रो डायग्राम मेडी मेंशन करछि. फर्स्ट वन इज योर IgG immunoglobulin gamma, second one is your IgE, third one IgM or Ig mu and Ig alpha, Ig delta. 5 types of immunoglobulins. हमें या विषय डिस्कस करिवा. तो मन देखि परथुओ Ig gamma, Ig epsilon and Ig delta गोटिए गोटिए y शेप हेकी अछि and immunoglobulin alpha दुईटा y अछि and immunoglobulin mu रे पांचटा y शेप एंटीबॉडी अछि. या विषय में डिटेल्स पढिबा एबे. सो फर्स्ट टाइम पढिबा immunoglobulin alpha. देखो, so immunoglobulin alpha or IgA actually it is a dimer. It is a dimer. Dimer माने कोन रे पिले देखो यार स्ट्रक्चर मु देखौची. इट इज ए डाइमर. डाइमर मीन्स व्हाट दुईटी मोनोमर अछि. दुईटी मोनोमर माने ये गोटे मोनोमर एंड ये गोटे मोनोमर. तो याको हम कोन कहबा डाइमर बोली कहबा. डाइमर मीन्स केतरा हेवी चेन रहबो कहलो गोटी एंटीबॉडी रे केतरा हेवी चेन थाए गोटी एंटीबॉडी रे केतरा हेवी चेन थाए तीटा दुईटी हेवी चेन थाए. और लाइट चेन केतरा थाए दुईटी. सो गोटे एंटीबॉडी रे दुईटी हेवी चेन एंड दुईटी लाइट चेन थाए. मींस गोटे मोनोमर रे दुईटी हेवी चेन थाए और दुईटी लाइट चेन थाए. तो ये तो गोटे डाइमर स्ट्रक्चर मींस दुईटी मोनोमर को नै खीची. तो या पाखरे केतरा हेवी चेन रहिबो चारोटी हेवी चेन और चारोटी लाइट चेन रहिबो. ओके, इट पिंकिश कलर ता होची हेवी चेन एंड ब्लू कलर लाइट चेन. ओके, देखि परुचो
ये होची गोटे लाइट चेन, ये गोटे लाइट चेन, तीनटा लाइट chain and चारोटी light chain, and similarly 4 heavy chains are also present. So immunoglobulin alpha is a dimer structure. Dimer means केमिति तयारी हिची है दुईटी मोनोमर को नेकी तयारी हिची। एंड तुम मन देखि परथो एठी गोटे साप भली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखि परछो, ई स्ट्रक्चर देखो, ई स्ट्रक्चर जो राउंड राउंड हेकी अछि देखि परछो, ये होची तमरो जॉइनिंग चेन जे चेन। ओके, को चेन रे जॉइनिंग चेन आम समस्त जानी छे जे गोटे एंटीबॉडी रे दुई चारोटी चेन थाए, चारोटी पॉलीपेप्टाइड चेन थाए, सेथिरो दुईटी हेवी चेन और दुईटी लाइट चेन। हेवी चेन लाइट चेन सहित केमिति कंबाइन हुए विथ द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। बट एठी दुईटी मोनोमर आसिला, ये गोटे मोनोमर एंड ये गोटे मोनोमर, एमाने केमिति अटैच हेबे विथ द हेल्प ऑफ जे चेन और जॉइनिंग चेन। यू कैन सी द जॉइनिंग चेन, हियर इज द जॉइनिंग चेन, ये जॉइनिंग चेन। जॉइनिंग चेन कौन करिवो दुईटी मोनोमर को अटैच करिवारे बा बाइंडिंग करिवारे हेल्प करिथाय। क्लियर, समस्तंकर क्लियर हैला। जॉइनिंग चेन रो काम कोन, दुईटा मोनोमर को बाइंडिंग करिवारे जो बॉन्ड हेल्प करे हमें ताको जॉइनिंग बॉन्ड और जॉइनिंग चेन भी कहू। क्लियर? Yes, sir. तो इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा इज ए डायमर। आ ये कोठी मिलिबो, कोठी थाए जेते सब एक्सोक्राइन सिक्रेशन। एक्सोक्राइन तुम माने जानिछो एंडोक्राइन कोन, एक्सोक्राइन कोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो देयर, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड जहा सब सिक्रेशन करंती से सबुथिरे को इम्यूनोग्लोबुलिन थाए, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थाए। लाइक योर कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम जानिछो तुम माने, कोलोस्ट्रम फर्स्ट मेल को कहा जाए। बेबी बॉर्न हला, न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हला, तो न्यू बेबी बॉर्न हला परे मदर थारू, मदर रो मामारी ग्लैंड रु जो मिल्क सिक्रेशन ही थाए एक्चुअली स्लाइटली येलोइश कलर थाए फर्स्ट मिल्क, ताको हमें कोन कहू कोलोस्ट्रम को। ओके, सो कोलोस्ट्रम रे एंड मिल्क रे ता सहित रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टिनल म्यूकस और म्यूसिन, सालाइवा, सीमेन, टीयर्स, ये सब गुडा होची कोन रे एक्सोक्राइन सिक्रेशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड रो सिक्रेट हिचंती। तो रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल म्यूकस हमर जो नाक पड़ारू आरंभ करिकी फेरिंग्स, फेरिंग्स पर क्वाड जिबा ट्राकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, पूरा एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ता सहित इंटेस्टिनल म्यूकस मींस माउथ रो आरंभ करिकी आनस पर्यंत एंटायर एलिमेंटरी कैनाल। ता सहित कोलोस्ट्रम, मिल्क एंड सालाइवा, सालाइवा में पढ़िले बे टिके आगुरु इंटेस्टिनल म्यूकस रे हमर जो माउथ पार्ट रे एलिमेंटरी कैनाल रो इनर लाइनिंग रे कोन सिक्रेट हुए, म्यूकस सिक्रेट हुए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे कोन सिक्रेट हुए, म्यूकस सिक्रेट हुए। सिंघाणी बाहर कि नहीं रे, हमें काश हेले किंबा छिंक हेले जहा बाहर सेगुडा म्यूकस गुडाको। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड रो सिक्रेशन एंड कोलोस्ट्रम, मिल्क, सीमेन, टीयर ए सब रे कोन थाए इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थाए। फास्ट तुम मन रखिबा दरकार जे इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा कोन। इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा इज ए डायमर स्ट्रक्चर। डायमर मींस व्हाट, दुईटी मोनोमर कंबाइन हेकी अछंती विथ द हेल्प ऑफ जे चेन और जॉइनिंग चेन। ओके, आ ये कोठी थिबो ए इम्यूनोग्लोबुलिन जेते सब एक्सोक्राइन सिक्रेशन। एठी तमे सेबासियस ग्लैंड भी लिखि परिबो, झाळ रे भी थाए इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ओके, और स्वेट ग्लैंड रे थाए ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड, योर सेबासियस ग्लैंड सेथिरे भी थाए इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। तो जेते सारा हम बॉडी रो एक्सोक्राइन सिक्रेशन मींस जेते सब एक्सोक्राइन ग्लैंड अछंती सेमानकर सिक्रेशन रे को इम्यूनोग्लोबुलिन थाए, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थाए। एंड इट प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन म्यूकोसाल इम्यूनिटी। आमे मन इच्छा खाई दो जहाँ भी फ्रुट्स अच्छी, फ्रुट्स किनिकी आनिले भले से सफा न करिकी न धोईकी खाई दो बेले बेले, किंबा सफा कले भी किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तार सरफेस रे थांती जहाँ हमें फ्रुट्स कहू। सपोज आमे गाजर गोटे खाइबा, गाजर से माटी तळ होई थाए, ताकू जेते सफा कले भी तार सरफेस रे टिके मैला थाए। तो सेडाକୁ जदि आमे डायरेक्टली खाइबा, खाई साला पर क्वाड जिवो रे हमर एलिमेंटरी कैनाल को गला। तो एलिमेंटरी कैनाल तार जो गाजर रो बा बीट रो सरफेस रे जहाँ थाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा फॉरेन पैथोजेन गुडाक जेतेबेले हमर एलिमेंटरी कैनाल भीतर को गला सेमाने डिजीज कराइबे कि नहीं, डिजीज कराइबे। तो सेमान को अपोज किए करे इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, बिकॉज हमर एलिमेंटरी कैनाल रो इनर लाइनिंग रे म्यूकस ग्लैंड गुडाक थाए। आ म्यूकस ग्लैंड गोटे एक्सोक्राइन ग्लैंड, से म्यूकस ग्लैंड रो एक्सोक्राइन ग्लैंड जेहेतु सेतरे कोन थिबो इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थिबो। से इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा कोन डे गोटे एंटीबॉडीटा। एंटीबॉडी कोन करिवो से फॉरेन पैथोजेन को किल करिवारे हेल्प करे। सो ये हमरो म्यूकोसाल इम्यूनिटी रे हेल्प करे, म्यूकोसाल
इम्यूनिटी रे हेल्प करे माने जते सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कथा हम नबा फ्री ब्रीथिंग करू एबे जेमिति कोविड-19 हिची जहा पई हम बॉडी रे एंटीबॉडी नाही जदी एंटीबॉडी थांता हम कोविड-19 कंसीडर करिबानी सपोज कॉमन कोल्ड हला ठंडा कॉमन कोल्ड जते हुए हम ब्रीथिंग करू सेतरे किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चली जानती हम बॉडी भीतर को त हमर म्यूकस लाइनिंग भीतर जते हम आउ कोन करू ब्रीथिंग जते करिबा किछि पोलन ग्रेन्स जाए किछि डस्ट पार्टिकल चली जानती किछि अनवांटेड थिंग्स एंटर करंती तो से सब को किल किए कराए इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा कराए बिकॉज हमर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रो इनर लाइनिंग रे भी म्यूकस ग्लैंड थाए से माने म्यूकस सिक्रेट करिवे म्यूकस रे कोन थाए इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थाए इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा गोटे एंटीबॉडी से कोन करिवो जति सब फॉरेन पैथोजेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो एलिमेंटरी कैनाल हो किंबा डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन को आसीबो तो जति सब एक्सटर्नल सिक्रेशन रे इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थाए से मान को किल करिवो हमको बंचेबो हम बॉडी को फिट रखिबारे हेल्प करे सो टोटल सेरम तम पढिथिबो ब्लड रे पढिछ कि नै रे ब्लड रो जति सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को बाहर कर देले जहा सब रहिला ताको हम सेरम को व्हाइट ट्रांसपेरेंट लिक्विड को हम कोन कहू सेरम कहू तो सेरम रो टोटल सेरम जहा थिबो सेत्र 6% कोन थिबो इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थाए मो ब्लड रे जो सेरम थाए एंटायर सेरम जदी 100% हला सेत्र 6% कोन थिबो इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थाए एटी मु मेंशन भी करिछि इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा केते परसेंट थाए 6% थाए हम सेरम रे टोटल सेरम रो 6% होउची इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा नाउ ये देखो ये होची तमरो इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा रो स्ट्रक्चर इले याकू सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाय मन रखो सिक्रेटरी एंटीबॉडी जदी पचारिबो जेते हम टिका आगु डिस्कस करले एक्सक्रेटरी सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड रो जते सब सिक्रेशन अछंती जहा जहा एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करे सेथरे कोन थाए इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थाए तेनु याकू कोन कहा जाय सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहा जाय ओके तो सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा को कहा जाय एंड इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा प्रोटेक्ट्स द इंटरनल बॉडी सरफेस by blocking the attachment of viruses and bacteria to mucous membrane एटा भी हमें डिस्कस करि सारले जहा भी हमरो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेउ किंबा एलिमेंटरी कैनाल हो एलिमेंटरी कैनाल माने हम खाइबा खाइ साला परे म्यूकस मेम्ब्रेन अछि कि नै हमरो स्टमक रे अछि इंटेस्टाइन रो इनर लाइनिंग रे अछि तो एलिमेंटरी कैनाल हो किंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन रे म्यूकस ग्लैंड थाए आ से माने म्यूकस सिक्रेट करंती तो जेतेबेले किछि फॉरेन पैथोजेन इट मे बी बैक्टीरिया वायरस जेतेबेले एंटर करिवे हम बॉडी भीतर को either रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को किंबा एलिमेंटरी कैनाल को जिबे एलिमेंटरी कैनाल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनर लाइनिंग रे म्यूकस ग्लैंड अछि से माने म्यूकस सिक्रेशन करेबे आ सेही फॉरेन पैथोजेन को किल करिवे हम बॉडी को सुस्थ रखिबारे सहायता करंती सो दिस इज योर व्हाट secretory immunoglobulin alpha you can see there is two monomers this is a monomer and this is another monomer they are binding with what this is your J chain or joining chain समस्त confusion नहीं है गोटे एंटीबॉडी रे चारटी पॉलीपेप्टाइड चेन थाए दुईटा हेवी चेन दुईटा लाइट चेन हेवी चेन को लाइट चेन सहित किए जदी अटैच करिछि पचारे क्वेश्चन तमे कोन लिखिबो डाइसल्फाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड आउ जदी दुईटी मोनोमर को अटैच करिबारे के हेल्प करे जॉइनिंग चेन के हेल्प करे रे जॉइनिंग चेन तो नेक्स्ट प्रोसीड करिबा हमें सेकंड नंबर immunoglobulin that is your immunoglobulin delta IgD Ig is the abbreviation of immunoglobulin and D for delta immunoglobulin delta it is a monomer monomer माने कोन हिथिबो चारटी पॉलीपेप्टाइड चेन थिबो आमे सेठी डिस्कस करले डाइमर माने हेवी चेन चारटा थिबो लाइट चेन चारटा थिबो ये मोनोमर तेथरे कोन थिबो दुईटा हेवी चेन आ दुईटी लाइट चेन टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थिबो एथरे so this immunoglobulin is present on the surface of B lymphocyte आमे डिस्कस करिथिला आगरु B lymphocyte T lymphocyte पढिथिले कि नै यस कोन कहउछ कि रे की okay so it is a monomer and immunoglobulin कोठी थिबो surface of the B lymphocyte which immunoglobulin delta IgD कोठी थाए B lymphocyte रो surface रे
तमे लास्ट पूर्व क्लास गुडा करो जदी पीडीएफ रखिछ से गुडा देखि दबा हम बी लिम्फोसाइट पढिथिले बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट से विषय डिस्कस करथिले तो बी लिम्फोसाइट रो सरफेस रे को इम्यूनोग्लोबुलिन थाए इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा आ यार काम कोन एंटीजन रिसेप्टर एंटीजन रिसेप्टर मो स्लाइड देखुस देखो ये होची तमरो बी सेल दिस इज योर बी सेल एंड बी सेल जो ऊपर देखो तीनोटी कोन अछि वाई शेप्ड बी सेल रिसेप्टर अछि एठी मेंशन भी करा है देखो बी सेल रिसेप्टर तो बी सेल रिसेप्टर भाबे के हेल्प करे हमको इम्यूनोग्लोबुलिन व्हाट डेल्टा IgD okay so this is your immunoglobulin डेल्टा ओके ये होची तमरो एंटायर सेल होची बी सेल ऊपर तीनोटी बी सेल रिसेप्टर अछि देखि परथबो ए सब को कोन गोडा करे इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा गोडा हम टिका को डिस्कस करले इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा कोउठी थाए बी सेल रो सरफेस रे थाए ओके तो ये बी सेल रिसेप्टर भाबे भी काम करे माने एंटीजन आसिखी कोठी अटैच हेबो बी सेल रिसेप्टर रे अटैच हेबो यार बाइंडिंग साइट रहइबो इठी देखि परछ जे एंटीजन भी लिखा है येलो कलर गोटे आसिके अटैच हिची तो एंटीजन कोठी अटैच हेबो बी सेल रो सरफेस रे थिबा इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा रे एंटीजन बाइंडिंग साइट थाए तो सेही एंटीजन बाइंडिंग साइट को के आसिके अटैच हेबो एंटीजन आसिकी अटैच हेबो so immunoglobulin delta is a monomer and it is present on the surface of the B lymphocyte. और यार काम कौन मन रखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अगर ऐसे पूछेगा क्या हिंदी कह देले कि सॉरी तो इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा को कौन कहा जाए एंटीजन रिसेप्टर कहा जाए एंटीजन रिसेप्टर जदि क्वेश्चन रे पचारिबो व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन is called as antigen receptor or B cell receptor you will write what immunoglobulin delta okay Yes, sir. although its function is not clear actually यार entire function कौन करूची ये ठीक से जाना पड़नी तथापि रिसर्चर माने बाहर करछंती जे इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा एलर्जिक रिएक्शन रे अल्टर हे जाय जते सब एलर्जिक रिएक्शन अछि स्किन इन्फेक्शन हो किबा हमें जते ब्लड ट्रांसफ्यूजन करू जनकर ब्लड अन्य जन को दिया जाय जते एक्सीडेंट हुए कि जहां भी किछि हुए किबा मदर मिल्क बेबी पी थाए कि नहीं मदर मिल्क तो मदर मिल्क भी फॉरेन एलिमेंट हला कि नहीं ता बॉडी रो नुह बेबी रो बॉडी रे नाही मिल्क से मदर बॉडी रो पी थाए तो मदर बॉडी रो मिल्क भी बेबी पय कोन हुए फॉरेन एलिमेंट हुए तो से सब केस रे एलर्जी हुए काहे कि आमे जानि छ हमर एंटीबॉडी अछि आ फॉरेन पैथोजन को से अपोज करे नष्ट करबा को चेष्टा करे तो से सब केस रे कोन हुए एलर्जिक रिएक्शंस हुए और एलर्जिक रिएक्शन हेले कोन हेबो इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा रो क्वांटिटी अधिका हे जाय ओके जत सब एलर्जिक रिएक्शन टू मिल्क के जण खीरो पियंतिनी खीरो पीले तंग वोमिटिंग हे जाय के जण को इंसुलिन देला बेले चेक करी दिया जाय इंसुलिन जाको डायबिटीज हेतिबो किबा पेनिसिलिन देले बहुत पेन हुए स्किन इन्फेक्शन हे जाय तो ए सब केस रे कोन हुए काहे कि सेमित हुए बिकॉज़ इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा रो क्वांटिटी इनक्रीज हे जिवो सडन इनक्रीज हे जिवो जदि कि इंजेक्शन देइथिबो माने थिबो माने सब इंजेक्शन रे चेक करा जाय नाही बट जतबेले पेनिसिलिन इंजेक्शन दिया जिवो हातर जो वेन थाए से वेन रे किछि एमएल देकी टेस्ट करिबा और से पार्ट को राउंड अप करि दिथिबे जदि कि देइथिबो एक्सपीरियंस करिथिबो किछि इंजेक्शन थाए बिकॉज़ से इंजेक्शन गुडा को एलर्जिक रिएक्शन तयारी करंती तणु फास्ट कोन करा जाय किछि क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी इंजेक्ट करा जाय चेक करिया पे किछि अलगा रेस्पॉन्स दोउछि कि बॉडी ताको चेक करिया पे फास्ट इंजेक्शन दिया जाय हाथ रे चेक करिया पे तो चेक कला पर जदि देखिबे डॉक्टर कि किछि रिएक्शंस होनी देन ताको टोटल डोज दिया जाय इंजेक्शन तो एलर्जिक रिएक्शन रे कोन हुए जतबेले सब एलर्जिक रिएक्शन हुए के जनकर बाइगण खाइला एलर्जी हुए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज आर देयर तो जतबेले एलर्जिक रिएक्शन हुए सेतबेले कोन हबो हमर बॉडी रे इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा रो नंबर इनक्रीज हे जिवो ओके तेनु करी सेमिधि हेताय एलर्जिक रिएक्शन समस्तंकर मन रहिला इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा बी लिम्फोसाइट रो सरफेस रे थाए ये गोटाए मोनोमर एंड यार काम होचे एंटीजन रिसेप्टर आ ये केतेबेले इनक्रीज हबो जेतेबेले एलर्जिक रिएक्शन बॉडी रे होई थाए सेतेबेले कोन हुए इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा रो नंबर इनक्रीज हे जाय
Okay, next time proceed kariba. So the 0.2% of the total serum immunoglobulin in the body contains immunoglobulin delta. IgD ଆମ ବଡିର ଟୋଟାଲ ସେରମ ର ଓନ୍ଲି 0.2%, ବହୁତ କମ 0.2% ହିଁ ଥାଏ। ଓକେ, ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ ଡେଲ୍ଟା and diagram ତ ଦେଖି ସାରିଛୁ already, so ଆମେ next slide କୁ proceed କରିବା। Then third immunoglobulin, that is your immunoglobulin epsilon, immunoglobulin epsilon IgE, it is also a monomer। ये भी या पाखरे भी चारोटी पॉलीपेप्टाइड चेन रहिबो, दुईटी हेवी चेन and दुईटी लाइट चेन, so it is a monomer। So immunoglobulin epsilon plays a major role in allergic reaction, infection by parasitic worms and arthropods। जते सब parasitic worm अछंती जेमिति एमोइबा ओकुणी हो किंबा arthropods माने के रे मसा, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग पड़िथिबो फर्स्ट ईयर रे फाइलम, तो मस्किटो एंड फ्लाइज ता सहित पैरासाइटिक वर्म जते सब अछंती आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स आ कोन पड़िथिले हेलमिन्थेस गुडाको, ए सब गुडाको पैरासाइटिक वर्म गुडाको एमानंकु अपोज करिया पई किंबा हम बॉडी रे जदी एलर्जिक रिएक्शन होउची ताकू अपोज करिया पई आईजीई कोन करे मेजर रोल प्ले करे। इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन EPSILON मेंशन भी करी छि मु इट लिखि छि मन रखु, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन को आ जाए। ओके, सो इट constitutes about only 0.002% of the total serum। हम ब्लड रे जो सेरम अछि जदी 100% हला तार ओनली 0.002% कोन थिबो immunoglobulin epsilon थाए। ओके, नेक्स्ट दिस इज योर मोनोमर immunoglobulin epsilon। एथरे कोन अछि दुईटी ग्रीन कलर लाइट चेन, दुईटी ग्रीन कलर लाइट चेन एंड दुईटी पर्पल कलर्ड हेवी चेन्स थाए। यार कलर मन रखिबनी हला, ग्रीन एमिति नुहो खाली डायग्राम रे तुमको विजुअलाइज ठीक से हेबो बोली ग्रीन एंड पर्पल कलर कराई छि, तमे खाली एतिकी मन रखिबो जे गोटे मोनोमर, दैट मीन्स एथरे चारोटी पॉलीपेप्टाइड चेन रहिबो, दुईटी हेवी चेन एंड दुईटी लाइट चेन, एंड हेवी चेन को लाइट चेन को बाइंड करिवारे की हेल्प करे डाइसल्फाइड बॉन्ड थिबो। ओके, तो इट प्रोड्यूस्ड प्राइमरीली इन द लंग्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन कोट रहिबो, कोट रहिबो म्यूकस मेम्ब्रेन रे, स्किन रे, लंग्स रे, बिकॉज एलर्जिक रिएक्शन सेठी थाए। आस्थमा हुए रे, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन जदी अधिका ही जीवो कोन हुए आस्थमा, जते सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अछि। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माने कोन, हमर इम्यून सिस्टम आम सेल को नष्ट करिवो, लाइक योर रिमाटॉइड आर्थराइटिस, आस्थमा, डायबिटीज मेलिटस, ए सब गुडा कोन गुडा को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर गुडा को। आ मन रखि थाओ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रो क्योर करि पारंती निकी, याकू खाली कंट्रोल करि हेबो, टोटल क्योर हे परिबन। जाको आस्थमा हितिबो तर कंप्लीटली भलो हे परिबनी, आस्थमा रहिबो कंट्रोल हे कि रहि परिबो, बिकॉज दिस ऑल आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मींस कोन, हमर इम्यून सिस्टम फॉरेन पैथोजन को किल न करी कि हम बॉडी रे थिबा सेल को किल करिवो। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन कोन करे, हिस्टामाइन बोली गोटाए सब्सटेंस थाए, हिस्टामाइन पढिथिबो। हिस्टामाइन कोन गोटे भासो डायलेटर केमिकल सब्सटेंस था। भासो डायलेटर आमे पढिथिले आगरु भी, हिस्टामाइन रिलीज होबो तो फागोसाइट गुडा को एंटर करंती। तो हिस्टामाइन कोन गोटे प्रोटीन डा, हिस्टामाइन भी तार काम कोन भासो डायलेटर, माने ब्लड वेसल को कोन करिवो प्रसारण करिदबो, ओसारिया करिदबो ब्लड वेसल को, जा फल रे ब्लड गुडा को जल्दी जल्दी एंटर हे पारि। तो अधिका हिस्टामाइन रिलीज हेले कोन हेबो, आस्थमा हुए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हुए, लाइक योर रिमाटॉइड आर्थराइटिस, आंठू गंठी बात जाको कहा जाय। ता सहित आ कोन अछि डायबिटीज मेलिटस। सो देयर आर नंबर ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड दे आर caused due to excess number of immunoglobulin epsilon। ओके, सो इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन एलर्जिक रिएक्शन को रेस्पॉन्स करि थाए। एलर्जिक रिएक्शन केतेबेले हुए, जेतेबेले अधिका हिस्टामाइन रिलीज होबो। हिस्टामाइन माने गोटे केमिकल सब्सटेंस ता जार काम कोन करिबा, ब्लड वेसल को डायलेट करिबा, प्रसारण करिबा। ओके, तो ए सब केस रे जेतेबेले हमें किछि डस्ट पार्टिकल ब्रीथिंग करि दबा, हमें जाउछले रास्ता रे धूली उडुची हम पळेले, किंबा धुआं धुआं जोटी अछि पळेले, तो जेतेबेले हम ब्रीथिंग करिबा हम कासो हुए, छिंको हुए कि नहीं,
कहीं हुए बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ हिस्टामाइन आम बॉडी कौन कला से जो डस्ट पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करिया पई से जो स्मोक को माने धुआं को न्यूट्रलाइज करिया पई बहुत गुडा हिस्टामाइन प्रोड्यूस कला और से हिस्टामाइन गुडा कौन हुए आमे जतले छिंको बाहर को पळे आसे सो मु भाबुची क्लियर हेतिबो इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन हम प्रोसीड करिबा आगो नेक्स्ट अनदर क्लास ऑफ एंटीबॉडी दैट इज योर इम्यूनोग्लोबुलिन गामा IgG इम्यूनोग्लोबुलिन गामा तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा हम बॉडी रे सबुठार अधिक परिमाण रे मिले ओके IgG देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट देखि दियो दिस इज योर इम्यूनोग्लोबुलिन गामा and 80% of the total serum of the immunoglobulin contains which immunoglobulin gamma हम बॉडी रे जति सब सेरम अछि जदि 100% हला सेथुरु 80% कोन थिबो immunoglobulin gamma थिबो IgG and one of the very important immunoglobulin in our body या विषय क्वेश्चन भी आसे मु कोन क्वेश्चन आसे कहूची मन देखछो सो immunoglobulin gamma हम बॉडी रो टोटल सेरम रो 80% थाए याको फर्स्ट मन रखिबो and it is also a monomer ये भी गोटे monomer ता मींस चारोटी पॉलीपेप्टाइड चेन रहइबो दुईटी हेवी चेन और दुईटी लाइट चेन तो हमें जदी कहबा हमें पढिले तीनोटी मोनोमर पढिले इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा थिला तमरो डाइमर तापर डेल्टा पढिले तापर एप्सिलॉन पढिले एंड एबे पढुची कोन इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ए तीनटा जगह मोनोमर तमे कहबो सब तो मोनोमर डिफरेंट नेम काहे दिया गला बिकॉज़ हमें आगरु पढिले जे हेवी चेन रो जो कांस्टेंट रीजन अछि तार एमिनो एसिड सीक्वेंस जदी अलग अलग रहइबो हमें ताको डिफर नेम दबा तण करी एथरो जाना पडुथबो जे इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा एप्सिलॉन एंड गामा मोनोमर हेले भी सेमानकर जो हेवी चेन रो कांस्टेंट रीजन अछि सेमानकर एमिनो एसिड सीक्वेंस अलग थिबो तण करी डिफरेंट नेम दिया जायछि सो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा 80% टोटल सेरम रो थाए हम बॉडी रे एंड ये कोन करिवो टेम्पोररी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करि थाए हेपाटाइटिस और अदर डिजीज ओके हेपाटाइटिस गोटे रोग किंबा अलग जते सब डिजीज अछि टेम्पोररी रेजिस्टेंस माने किछि टाइम पर्यंत से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करिवो अटके की रखिवो बॉडी को वीक हेबा को देबो ना नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन गामा आउ कोन करे क्वेश्चन रा से रिपीटेडली मोस्ट ऑफ द टाइम आसीची भी जे को इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर फ्रॉम मदर टू द फेटस मदर बॉडी रो फेटस को इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर हेता है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा okay immunoglobulin gamma is the only immunoglobulin that crosses the placental barrier and comes from mother to the baby during developmental stage माने जन्म हेबा आगरु हम मदर बॉडी रे तो इम्यूनोग्लोबुलिन गामा थिबो किंतु फेटस बॉडी को गोटे ही इम्यूनोग्लोबुलिन आसी थाए से इम्यूनोग्लोबुलिन रो नाम कोन immunoglobulin gamma okay so this immunoglobulin can cross the placental barrier and therefore it is important in producing immunity in the infants before birth जन्म हेबा आगरु हम बॉडी रे इम्यूनिटी थाए कहा जगु थाए ड्यू टू इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ओके जदी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा हम बॉडी को आसी पारि न थांता हम जतले मदर होम्स रे थिले तो सेते बेल को हम बहुत गुडा डिजीज हेई थांता बट हमको समिति हुए नहीं काहे कि मदर बॉडी रो प्लासेंटा देकी फेटस बॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन गामा आसी थाए बिकॉज यार मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो तेनु ये क्रॉस करके आसी परिबो बाकी जहा सब थिला इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा डेल्टा एप्सिलॉन एंड म्यू एमानकर मॉलिक्यूलर वेट हाई तेनु से माने क्रॉस करके आसी पारंतिनी जेहेतु इम्यूनोग्लोबुलिन गामा रो मॉलिक्यूलर वेट लो सो ये कोन करे मदर थारू फेटस पाखको प्लासेंटल बैरियर देकी अम्बिलिकल कॉर्ड देकी आसी थाए ब्लड रे ओके तो जहा फल रे आम बॉडी रे जन्म हेबा आगरु ही इम्यूनिटी तयारी हे जाय थाए आ हमको डिजीज हुए नाही तापर आमे जतले जन्म हेबा डिफरेंट एनवायरनमेंट रे बढ़िबा जन्म हला पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए डिफरेंट एनवायरनमेंट रे तो सेठी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पुनी आम बॉडी एक्वायर करिवो बट ता आगरु आमे जतले जन्म हेई नथिले डेवलपमेंटल स्टेज रे थिले सेते बेले भी आम बॉडी रे इम्यूनिटी थाए बिकॉज there is a immunoglobulin that is your IgG immunoglobulin gamma that can cross the placental barrier and comes from mother to the fetus body ओके समस्त को बुझा पड़िला आ यार काम कोन ये एक्टिवली काहा को विरोध करे बैक्टीरिया
फंगस एंड वायरस। ओके, बैक्टीरिया फंगस एंड वायरस को अपोज करी थाए किए इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। एंड ये होची जेहेतु 80% अछि, सो इट इज ए प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबुलिन, मुख्य इम्यूनोग्लोबुलिन आम ब्लड रे इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। ये जेहेतु मदर बॉडी रु फोएटस को आसी थाए, तो बिफोर बर्थ जन्म हेबा आगरु जदि इम्यूनिटी अछि आम बॉडी रे, कहा पई अछि से इम्यूनिटी ड्यू टू इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। नेक्स्ट प्रोसीड करिवा। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। समस्त मन देखि देखिबो, मु कहि सारली ऑलरेडी आम बॉडी रे 80% थाए। कार किछि प्रॉब्लम अछि कि रे? सॉरी, किछि कहूछो ना कोन सुबा जाउनी? ओके, प्रोसीड करिछि मु। नेक्स्ट लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज योर इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, mu। म्यू को तुम जानि छ सिंबल यू शेप्ड थाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे पढ़थिबो फिजिक्स रो जदि लाइट चैप्टर पढ़ाय अछि। तो इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू ये गोटे पेंटामर। आमे तीन टाइप रे पढ़िले, तीनटा मोनोमर, गोटे डाइमर, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू इज ए पेंटामर। पेंटामर मींस व्हाट? केमिस्ट्री रे पढ़िथिबो, नेमिंग जतेबेले करा जाय। पढ़िनो? पांचटा। तो पांचटा मोनोमर को नेकी तयारी हेतिबो। ओके, इट इज ए पेंटामर मींस केतेटा हेवी चेन केतेटा लाइट चेन थिबो के कहि परिबो? जेमति गोटे मोनोमर रे दुईटा हेवी चेन दुईटा लाइट चेन, पांचटा हेले केतेटा हेबो हेवी चेन लाइट चेन? 20 तो 10 heavy chain and 10 light chain means total 20 polypeptide chains are present in immunoglobulin mu. Immunoglobulin mu रे 20 टी heavy polypeptide chain थिबो, सेथिरो 10 टा heavy chain आ 10 टा light chain। आ तुम माने जानि छ जदि क्वेश्चन पचारे जो heavy chain किबा light chain अछि सेमान को बाइंडिंग करिबारे, अरे मु जाई कि आउथरे म्यूट करिवि कि तो म्यूट करनो काहे कि के अछो काहे? जयश्री साहू म्यूट करे। तो देखो, immunoglobulin mu, it is a pentamer. Pentamer means what? पांचटा मोनोमर को नेकी तयारी। जेता हम जानि छे गोटे मोनोमर रे दुईटी हेवी चेन एंड दुईटी लाइट चेन थाए, एंड ये जदि पेंटामर हबो देन 10 टा हेवी चेन और 10 टा लाइट चेन थिबो। हेवी चेन को लाइट चेन को जोड़ीबारे को बॉन्ड हेल्प करे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जो पांचटा मोनोमर तयारी हेले सेमान को कंबाइन करिबारे के तयारी हेल्प करिवो? जे चेन और जॉइनिंग चेन। सो मो स्ट्रक्चर देखे दिए फर्स्ट, जे चेन कोन देखो। दिस इज योर immunoglobulin mu. This is a single monomer and single monomer केतरा अछि? 1 2 3 4 5 एडी 6 टा हे जाईची, 6 टा कंसीडर करबनी हैला। IgM रे केतरा थाए रे पेंटामर ई बुझी पड़छो, 5टी मोनोमर्स थिबो। ओके, मते एक्चुअली डायग्राम मिलिलान तो मैं आपको अटैच करिछि, एटा हमें हायर स्टडी रे पढिबा, बट एबे पर्यंत तमे इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू रे थाओ। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू रे केतटी मोनोमर थिबो? 5टी मोनोमर। दैट मींस 10 हेवी चेन्स एंड 10 लाइट चेन्स थिबो। मु तुमको देखिए दिए जे चेन, ये होची जे चेन, मझिरे देखो सेंटर पार्ट रे। सो एठी जो रेड कलर गुडा को अछि, तमर जो आउटसाइड रिंग स्ट्रक्चर अछि रेड, ये होची तमर डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, दिस इज योर डाइसल्फाइड बॉन्ड। बट इंटीरियर पार्ट रे देखो, एई पार्ट को देखो, जो छोट छोट रेड कलर लाइन गुडा को अछि, छोडा कोन गुडा करे? जे चेन गुडा को, जॉइनिंग चेन। माने गोटिए एंटीबॉडी को, गोटिए मोनोमर को आ गोटिए मोनोमर सहित अटैच करिबारे को चेन हेल्प करे? जे चेन और जॉइनिंग चेन। क्लियर? समस्त को बुझा पड़िला? एठी दुईटा बॉन्ड अछि रे, डाइसल्फाइड बॉन्ड ये, एंड दिस इज योर जे चेन। ओके, J chain and disulfide bond. So this is the structure of what? Immunoglobulin mu. एथुरु जदि गोटिए को कट करि दबा, इरेज करि दबा, गोटिए को जदि इरेज करि दबा, पांचटा रहि जिवो। पांचटा रहिला पर हम त कोन कहबा?
दिस इज ए पेंटामर स्ट्रक्चर सो ये कोन हेतिबो इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू तो तमे जेहेतु एथरु जानि परथुबो ये गोटे पेंटामर तेनु यार मॉलिक्यूलर वेट हाई थिबो कि लो थिबो मॉलिक्यूलर वेट यार लो थिबो ना हाई थिबो हाय हाई थिबो काहे कि बिकॉज़ जेहेतु पांचटा मोनोमर अछि तो 10टा हेवी चेन और 10टा लाइट चेन हला तो सेतिरे बहुत गुडा कोन थिबो अमीनो एसिड सीक्वेंस थिबो जदि अमीनो एसिड सीक्वेंस बढ़िला तार मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज हबो सो immunoglobulin mu is a pentamer and it constitute only 14% of serum immunoglobulin हमर जते सब सेरम अछि टोटल जदि 100% हला सेतरु 14% कोन थिबो immunoglobulin mu थिबो okay it is treated as the basic antibody that is produced by B cell सार साउंड होउची हां मते भी सुबिला मु सेत में रहि गली पा एबे सुबुची की हां सारे बे क्लियर सुबगल okay so immunoglobulin mu is a pentamer and immunoglobulin mu constitute how many percent how much percent 14% of the total serum हम बॉडी रो टोटल सेरम रो 14% immunoglobulin mu थाए आ याकू कोन कहै छै बेसिक एंटीबॉडी कहै देखो एडी मु मेंशन करै छी बेसिक एंटीबॉडी आ जदी क्वेश्चन पचारे लार्जेस्ट एंटीबॉडी सब कोन लिखिबो immunoglobulin mu हमरो बॉडी रे जते सब एंटीबॉडी अछंती सबुठारु बड़ एंटीबॉडी होची immunoglobulin mu because it is a pentameric structure पांचटा मोनोमर को नेकी तयारी आ बेसिक एंटीबॉडी काहे को गला हम बॉडी को जे कोनसी फॉरेन पैथोजन आसना काहे की फर्स्ट रेस्पॉन्स किए करे immunoglobulin mu रेस्पॉन्स करे फर्स्ट immunoglobulin दैट इज योर IgM से कोन करिवो रेस्पॉन्स करे थाए फर्स्ट एंटीबॉडी देखो लास्ट पॉइंट देखो मु मेंशन भी करी छी इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन रेस्पॉन्स टू इनिशियल एक्सपोजर ऑफ एन एंटीजन जदि किछि एंटीजन हम बॉडी को एंटर करूची फर्स्ट जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स करे थाए ता ना होची immunoglobulin mu तेणु ताको कोन कहया गला बेसिक एंटीबॉडी भी कहया गला बेसिक एंटीबॉडी जदि पचारे immunoglobulin mu लेखिबो लार्जेस्ट एंटीबॉडी जदि पचारे immunoglobulin mu लेखिबो ओके हमर जो एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम अछि ब्लड हो किबा लिम्फ हो टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम रे सबुठारो बड़ immunoglobulin होची के immunoglobulin mu यार स्ट्रक्चर केमिति पेंटामेरिक स्ट्रक्चर माने पांचटी मोनोमर को नेकी तयारी केते परसेंट अछि 14% अछि ओके बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करिवा सो ये कोठु प्रोड्यूस हेताय स्प्लेन जानि छ तमे लिम्फ ऑर्गन लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लेन प्लीहा को जाय ओडिया रे कोन को जाय प्लीहा स्प्लेन रो कोन प्रोड्यूस हेताय immunoglobulin mu प्रोड्यूस हेताय बा IgM प्रोडक्शन कोठु हेताय मेजर साइट इज स्प्लेन माने स्प्लेन रो मैक्सिमम immunoglobulin mu प्रोडक्शन हेताय क्वेश्चन रे जदी आसे लेखिबो स्प्लेन इज द मेजर साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट immunoglobulin M IgM so तमरो 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एबे कंप्लीट हे जाई छी पांचटा immunoglobulin हमें पढिले एबे कोन देखिबा मेकैनिज्म ऑफ एंटीबॉडी हमें जो एंटायर एंटीबॉडी पढिले व्हाट इज एंटीबॉडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी व्हाट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डिस्कस करले तो जो एंटायर हमें पढिले चैप्टर को सेमानकर मेकैनिज्म कोन केमिति से माने न्यूट्रलाइज करछंती टिके हमें ब्रीफली डिस्कस करिवा तापरे क्लास एंड करिवा सो देखो mechanism of action of antibodies हमें जो पढ़िले एंटीबॉडी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी immunoglobulin alpha delta epsilon gamma and mu 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी डिस्कस करले से जो एंटीबॉडी गोडा को केमिति फॉरेन पैथोजन को किल करछंती से प्रोसेस गोडा को हमें कोन कहबा एंड व्हाट आर द स्टेप्स ओके से विषय रे डिस्कस करिवा so देखो antibodies can trap antigens and then antigens are destroyed by effector mechanism or of following types जहां भी एंटीजन हम बॉडी भीतर को एंटर करूची ताको फर्स्ट एंटीबॉडी कोन करिवे ट्रैप माने कोन कैप्चर करिवे चिन्हइबे रिकॉग्नाइज करिवे तापरे सेमान को इफेक्टर मेकानिज्म द्वारा डिस्ट्रॉय कर दियंती से इफेक्टर मेकानिज्म गोडा कोन हमें से विषय रे डिस्कस करिवा सो फर्स्ट वन इज योर एग्लूटिनेशन व्हाट एग्लूटिनेशन माने कोन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हेबा को हमें कोन कहू एग्लूटिनेशन रिएक्शन हमें पढ़िथिले मने पकाओ एंटीजन रे कोन थाए एपिटोप थाए कि नहीं एंटीजन रे एंटीबॉडी रे कोन थाए पैराटोप थाए
एपिटोप और पाराटोप Paratope. अटैच हेबे एपिटोप और पाराटोप अटैच हेबे एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी रे थाए सेडी की जाई अटैच हेबे अटैच हला परे लॉक एंड की फैशन हमें पढ़िथिले लॉक एंड की फैशन रे समान अटैच हला परे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हबो तो हमें कोन कहू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो जतबेले फ्रीली एंटीजन मूव करूला आम बॉडी रो सर्कुलेटरी सिस्टम हो किबा जे कोनोसी पार्ट रे जतबेले फॉरेन पैथोजन एंटर कला आ फ्रीली मूव करूला से हार्मफुल थिला समस्त हमर सेल को डिस्ट्रॉय करूला नष्ट करूला जतबेले एंटीबॉडी ता सहित अटैच हे गला एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होला तापर कोन हे जिवो एंटीजन दा न्यूट्रल हे जिवो हार्मलेस हे जिवो आ हमको क्षति पहुंचाई परिबो नाही सो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और agglutination reaction is one of the important mechanism of our body's defense system हम बॉडी जो डिफेंस सिस्टम थाए agglutination reaction द्वारा एंटीजन कोन हे जाय हार्मलेस हे जाय बा यूजलेस हे जाय आ काम करि परिबो नाही से हमको हम बॉडी को क्षति पहुंचाई परिबो नाही बिकॉज ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी तो कोन करिवो न्यूट्रलाइज करि दबो तार पावर को नष्ट करि दबो ओके सो agglutination बुझा पड़िला agglutination रिएक्शन कोन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हेबा प्रोसेस को हमें कोन कहू agglutination रिएक्शन कहू ओके agglutination रिएक्शन रो बेनिफिट कोन agglutination रिएक्शन हला परे बा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हला परे एंटीजन हार्मलेस हे जाय ओके आ हमको हार्म करि परिबो नाही हमको क्षति पहुंचाई परिबो नाही नेक्स्ट ऑप्सोनाइजेशन सेकंड पार्ट इज योर ऑप्सोनाइजेशन देखि पड़थबो ऑप्सोनाइजेशन माने कोन हमें लास्ट एगुडा सब डिस्कस करि सारि ऑलरेडी जतबेले हिस्टामाइन रिलीज हला पर कोन हे परे फागोसाइटोसिस को फागोसाइटिक सेल जत सब अछंती सेमान को इंफॉर्मेशन मिली जिवो जे इन्फेक्शन साइट रे कोन अछि फॉरेन पैथोजन गुडा को आसी कि अछंती तो सेमान कोन करिवे डायपेडिसिस माने अछि डायपेडिसिस टर्म डायपेडिसिस माने कोन फागोसाइटिक सेल गुडा को ब्लड वेसल रो आउटसाइड जिवे बाहर को स्क्वीज हे कि बाहरिबा को हम कोन कहू डायपेडिसिस को सपोज हमर स्किन रे इन्फेक्शन हला तो स्किन इज द इन्फेक्शन साइट से इन्फेक्शन साइट रे कोन हबो बहुत गुडा हिस्टामाइन रिलीज हबो मास्ट सेल रिलीज करिवे हिस्टामाइन रिलीज कला परे फागोसाइट सेल गुडा को इंफॉर्मेशन पहुंची जिवो जे हम बॉडी रो किछ पार्ट रे किछ फॉरेन पैथोजन आसी जाय छंती हमको जीवा को पड़िबो तो एक्चुअली फागोसाइटिक सेल गुडा कोठी थाए ब्लड वेसल रे थाए तो सेमान को ब्लड वेसल रो बाहरिबा को पड़िबो हिस्टामाइन गोटाए कोन भासो डायलेटर ता ब्लड वेसल को से एक्सटेंशन करेइबो तो बहुत गुडा फागोसाइटिक सेल कोन हेबे इन्फेक्शन साइट को रिलीज हेबे ब्लड वेसल रो बाहर को आसीबे तो फागोसाइटिक सेल गुडा को जतबेला एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर देबे चिन्हि देबे सेतेबेला हम तो कोन कहबा सेही प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन ओके सो ऑप्सोनाइजेशन is also one of the important mechanism of our body's defense system जदि phagocytic cell माने एंटीजन को चिन्हि पारि न थांते देन ताको मारी पारि न थांते जदि एंटीजन मरिबोनी हमहु कोन हेबो डिजीज हेबो तेनो phagocytic cell गुडा को एंटीजन को रिकॉग्निशन करबा गोटे इंपोर्टेंट बा एसेंशियल वर्क ओके तो जतबेले फागोसाइटिक सेल रिकॉग्नाइज करि दबो सेमान को फागोसाइटोसिस प्रोसेस रे एंगल्फ करि दबो गिली साला परे फागोलाइसोसोम तयारी हबो फागोलाइसोसोम तयारी हला परे सेगुडा को नष्ट कर दी थांता सो ऑप्सोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय फागोसाइटिक सेल्स नेक्स्ट प्रोसेस इज योर प्रेसिपिटेशन सो प्रेसिपिटेशन कोन एक्चुअली किछ एंटीबॉडी अछंती कोन करिवे से माने एंटीजन को सॉल्युबल करि देबे सॉल्युबल माने कोन छोट छोट खंड रे कन्वर्ट करिकि ताको प्लाज्मा बा ब्लड रे सॉल्युबल करि देबे सॉल्युबल कला पर कोन हबो इमोबाइल जेल गोटे तयारी हबो इमोबाइल जेल माने कोन मोबाइल माने गतिशील इमोबाइल माने गतिशील हबन गोटे थिक की बा गम टाइप रो जेल तयारी करिवे ओके जेल तयारी कला पर कोन हेबो सेगुडा को मैक्रोफेजेस गुडा को एंगल्फ करि देबे गिळी देबे जा फल रे से न्यूट्रलाइज हे जिवो ओके तो प्रेसिपिटेशन कोन किछ एंटीबॉडी अछंती जो माने एंटीजन को छोट छोट खंड रे कन्वर्ट कर दियंती गोटे जेल तयारी करंती इमोबाइल जेल काहे कि जदि मोबाइल जेल हे थांता से पूरा हमर एंटायर बॉडी रिमूव हे थांता मूव हेले टिके डिफिकल्ट हबो कहा पई मैक्रोफेजेस पई गिळीबा पई तो जदि इमोबाइल जेल हे जिवो गोटे पाखरे ही थिबो से जेलटा देन कोन करिवो मैक्रोफेजेस ता पाखो को जाई कि ताको एंगल्फ करि दबो आ ताको न्यूट्रलाइज करि दबो सो प्रेसिपिटेशन
is also one of the step of the mechanism of the defense system. Next time proceed kariba. So this is your neutralization reaction. Neutralization reaction केतेबेले कुहा जीवो जेतेबेले किछि भाइरस किबा बैक्टीरिया आमे पढितिले मन अछि फर्स्ट ईयर रे टिटानस ले कोन हो जाय पूरा बॉडी बक्र हो जाय माने देखिथिबो तमे योगा कला भली थिला गोटे स्ट्रक्चर मु देखैथिली क्लास रे फोटो वीडियो भी देखैथिली टिटानस ले केमिति हुए देखिथिला माने पूरा हाड़ बेंड हो जाय बोन रो स्ट्रक्चर पूरा बेंड हो जिवो गोटे अलग टाइप रो माने मारात्मक डिजीज गोटे टिटानस तो टिटानस टा कोन दाई गोटे पॉइजनस सब्सटेंस क्लोस्ट्रिडियम टिटानी गोटे पॉइजनस तयारी करे जाको हम टिटानस कहू बा टिटानी कहू ओके से टिटानस कोन करिवो बा से पॉइजन गोडा को न्यूट्रलाइज करिवा दरकार हम बॉडी रे किछि स्पेसिफिक एंटीबॉडी अछंती जो मानकर काम कोन जहां भी टॉक्सिन सब्सटेंस भाइरस हो किबा बैक्टीरिया हो किबा जे कोनसी फॉरेन पैथोजन हम बॉडी रे जे कोनसी टॉक्सिन जदि रिलीज करिवे से टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करिवा दरकार से गोडा को हार्मलेस करिवा दरकार जहा फल रे हमको डिजीज हेबो नाही यदि के जन कोन करंती विष पी दियंती तो विष पीले जार बॉडी रो इम्यूनिटी स्ट्रांग अछि ताकू किछि हबनी जार वीक अछि से मरि जानती से माने सिमिलरली जेमिति किछि भाइरस बैक्टीरिया अछंती मु गोटे एग्जांपल दउतली एबे टिटानस गोटे डिजीज जोटा हेले कोन हुए हमरो हैंड रो मान जत सब बोन अछि सब गुडा को बेंड हि जिवो माने गोटे अलग टाइप रो स्ट्रक्चर योगा कला भली हितला गोटे स्ट्रक्चर मु तम मान को देखैथिली भी तो से सब कहा द्वारा हला बैक्टीरिया जो पॉइजन सिक्रेट करथिला से पॉइजन जो हला से टॉक्सिन जो हला सो सेही टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करिवा दरकार जदि न्यूट्रलाइज करि देला हमरो जो किछ एंटीबॉडी अछंती जो माने न्यूट्रलाइज करि देबे हम बॉडी को किछ हार्म हेबो नाही जदि न्यूट्रलाइज करि परिबे नि देन हमको डिजीज हेता है नेक्स्ट लास्ट वन इज योर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हमरो एंटीबॉडी गोटे प्रोटीन तयारी करे जो हमें कोन कहू कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जार काम कोन बैक्टीरियल सेल वॉल को नष्ट करिवो एंटीबॉडी कोन करे रे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिए हम बॉडी रे थाए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ताको एक्टिव करबा दरकार एक्चुअली इनएक्टिव स्टेज रे थाए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन तो जते बेले एंटीजन हम बॉडी भीतर को एंटर करिवो फॉरेन पैथोजन बैक्टीरिया एंटर करिवो हम बॉडी भीतर को तो हमरो किछ एंटीबॉडी थिबे अछंती जो माने कोन करिवे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिव करिवे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रो काम कोन बैक्टीरियल सेल वॉल को नष्ट करिवा लाइसिस करिवा जदि बैक्टीरिया रो सेल वॉल को नष्ट करि देबो सेलडा नष्ट हो जिवो बैक्टीरियल सेल नष्ट होला परे हमको डिजीज हेबो नाही so this is all about your class so today we discussed about what antibody types of antibody and mechanism of action of antibody if you have any doubt then you can ask okay so precipitation कौन कहिबी precipitation reaction रे कोन हुए precipitation भी गोटे हमरो डिफेंस मेकानिज्म रो बा जो एंटीबॉडी जेमिति वर्क करे तार गोटे स्टेप प्रेसिपिटेशन रे कोन हेबो कहलो का को बुझला कि कहि परिबो प्रेसिपिटेशन ओके जा जदी बुझिन भल पुणी थरे सुनो प्रेसिपिटेशन कोन करबो एंटीबॉडी हम बॉडी रे अछि कि नै रे समस्त जानि छ एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल रु तयारी हुए सम बॉडी रे एंटीबॉडी अछि जते बेले किछि फॉरेन पैथोजेन्स हम बॉडी भीतर को एंटर करिवे तार सरफेस रे एपिटोप थाए एंटीजन डिटरमिनेंट सेल थाए जाको हमें कोन कहू एंटीजन कहू एंटायर पैथोजन को हम एंटीजन कहिबानी पैथोजन रो बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो सरफेस रे किछि प्रोटीन थाए जाको हम एंटीजन कहू तो सही एंटीजन को कोन करियो को पड़िबो सॉल्युबल करियो को पड़िबो सॉल्युबल माने मिले दबा जेमिति वाटर रे चीनी मिसेले चीनी सॉल्युबल सुगर इज सॉल्युबल इन वाटर तो सिमिलरली एंटीजन गोटे प्रोटीन ता ताकू पूरा कोन करियो पड़िबो मिले देबा को पड़िबो सॉल्युबल करियो को पड़िबो सॉल्युबल कला पर कोन हेबो से गोटे थिक इमोबाइल जेल माने एबे पानी जदि हमें फ्लोर रे पकेबा पानी गडी गडी पळाय कि नै रे ताकू मोबाइल कहबा जदि हमें गम पकेबा फेविकॉल पकेबा कोन फेविकॉल गडी गडी पळाइबो जीवो नहीं ताकू कहबा हमें इमोबाइल जेल तो गोटे इमोबाइल जेल तयारी करिवो प्रेसिपिटेशन माने होची ताहा एंटीजन को नष्ट करि दबो छोट छोट खंड रे कन्वर्ट करि दबो सॉल्युबल करि दबो सॉल्युबल कला पर गोटे इमोबाइल जेल तयारी हेबो और सही इमोबाइल जेल को मैक्रोफेजेस आसिकी एंगल्फ कर दिए ताकू नष्ट कर दिए इज इट क्लियर
Oh, sir, thank you. Okay, any doubt? ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପିଲେ?